لپٹنے نہیں دیتا. یہاں بیٹھو IPL میچ کے لیے بیٹھو تو خبر میں اندھیرا آئے گا, سانپ آئیں گے, کفن لپٹنے کے بعد مردے کو سانپ بھی لپٹ لیں گے, بچھو لپٹ لیں گے. جب تم پکارو IPL میچ والا کرکٹر تمہیں نہیں بچا سکتا, ہیرو نہیں بچا سکتا, ٹی وی کا سیریل نہیں بچا سکتا. یہ سب عذاب بن کر تمہارے اوپر آئیں گے, مگر جو اجتماع میں بیٹھ کر رسول کا ذکر سنتا ہے, قسم اللہ کی وہ ذکر اس کو سانپ کو ڈسنے نہیں دیتا, بلکہ اس کے سامنے آڑے آ کر کھڑا ہو جائے گا. خبردار اسے ٹچ مت کرنا, یہ تو نبی کا ذکر سننے والا ذاکر ہے. تھوڑی دیر برداشت کرو. پکچر دیکھتے وقت کوئی بھی نہیں اٹھتا, اگر تارا تاری تو اٹھ کو گیا تو کون سو سین جاتا کی, کون سو فیٹنگ جاتی کی, جانے تیار نہیں ہوتے. مگر اجتماع میں بیٹھے شیطان کیا کر دیتا, شیطان کو غصہ آتا. اجتماع میں بیٹھا, موبائل لے کر انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے بیٹھ رنگی تصویریں. انٹرنیٹ کی دنیا میں جا کر یوٹیوب اور گوگل میں ننگی فوٹو دیکھنے والوں, وہاں تو دل لگ رہا ہے, مگر اللہ کے گھر میں دل نہیں لگ رہا تو تیرا ضمیر مر گیا. ارے تیرے مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے رجب کی 2 تاریخ کو سنی دعوت اسلامی کا یہ روح پرور اجتماع رکھ کر تمہارا کنیکشن مغربی کلچر سے نکال کر مدینے والے آقا سے جڑانے کے لیے آئے ہیں, تاکہ تمہاری زندگی بدل جائے. نوجوانوں, ٹی وی اور موبائل کے ذریعے اپنی آنکھوں سے زنا کرنے والوں اور گندے پکچر دیکھ کر اپنی باڈی کو خراب کرنے والوں, آج سے توبہ کرو اور سرکار کے عاشق بنو. تھوڑی دیر صبر کرو, اس صبر تمہاری قبر کو اللہ کی رحمت کا ابر کا گہوارہ بنا دی. سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا, عرش میں جانے کا, بیچ میں اٹھے تو ذہن منتشر ہوتا, اٹھنا نہیں, اٹھنا ہے جاؤ, بیچ میں نہیں اٹھنا. یہاں اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں, ہمیں نہیں دکھ رہے, جن کو دکھ رہے وہ لوگ ان پر فدا ہو گئے. اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں, رحمت آ رہی ہے, اور شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بیٹھنے نہیں دیتا. بیٹھو, صبر کرو, تھوڑی دیر صبر کرو. عرش پر جبریل کو آقا نے پوچھا, اے جبریل بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے, میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا رب کی بارگاہ میں جا کر. حضرت جبریل نے کہا, آقا میں دیکھ رہا ہوں میدان قیامت قائم کر دیا جائے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یا رسول اللہ, آپ کی امت کو اللہ پل پر چلنے کا حکم دے گا, پل صراط سے گزرنا پڑے گا, وہ پل جو جہنم کے اوپر بنا دیا گیا ہے, جو تلوار سے زیادہ تیز ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, اور جہنم کے اوپر وہ پل رکھا گیا, اس پر سے نمازی کو بھی گزرنا پڑے گا, بے نمازی کو بھی گزرنا پڑے گا, شرابی کو بھی گزرنا پڑے گا, عبادت کرنے والے کو بھی گزرنا پڑے گا. یعنی جنت کو جانے کا وہ ایک ہی پل ہے, اسی پل سے گزرنا پڑے گا. یا رسول اللہ, جب آپ کی امت کو اللہ پل سے چلنے کا حکم دے گا, آپ کی امت گھبرائے گی, آپ کی امت روئے گی. یا رسول اللہ, مجھے اگر تم پوچھ رہے ہو کیا تمنا ہے, تو آپ کے جبریل کی یہ تمنا ہے آقا کہ آپ مجھے اتنی اجازت دلا دو, قیامت کے دن اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے پاؤں کو پل پر بچھا سکوں, اور آپ کی امت میرے پاؤں پر سے پار نکل جائے, تاکہ میں آپ کی امت کی مدد کر سکوں. امت کی مدد کر سکوں. کس کی مدد کروں؟ امت کی مدد. جبریل علیہ السلام نے امت کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ رکھا, آقا کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا تو نبی کی امت کی مدد کرنا. اگر چاہتے تو جبریل بول سکتے تھے, یا رسول اللہ یہ اجازت لے لو, میں بھی آپ کے ساتھ اندر آ جاتا, بول سکتے تھے جبریل, موقع اچھا تھا. مگر جبریل کو وہ نہیں چاہیے تھا, آپ کو راضی کرنا ہے. آقا کو راضی کرنا ہے, آقا کو راضی کرنا تو کیا کرنا, امت کی مدد کرنا. اور جب امت کی مدد کرتے نا, آقا بڑے خوش ہو جاتے ہیں. امت کی مدد کرنے والے سے آقا راضی ہو جاتے ہیں. کس انداز سے صحابہ نے مدد کیا, کس انداز سے آقا کی امت کو کیسے مدد کرتی ہے. ارے حضرت جبریل فرشتوں کا سردار ہو کر امت کی مدد کر کے آقا کو خوش کرنا چاہتے ہیں, مگر تمہیں کیا ہو گیا, ایک دوسرے کے دشمن بنے ہو, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہو, ایک دوسرے کے حسد کی
लोगों की टांगे खींच रहे हो, किसी अच्छे काम में टांग लड़ाकर लोगों को तकलीफ पहुंचाना, ये उम्मत का काम नहीं है। उम्मत में दरार पैदा करना छोड़ दो, उम्मत में मोहब्बत पैदा करो। ये तालीम रसूलुल्लाह ने दी है कि आप नहीं जानते सरकार के दीवानों, मेरे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं रसूलुल्लाह। कभी अपनी उम्मत को तकलीफ होती है ना, आका को बड़ी तकलीफ होती है। अगर किसी उम्मत के पैर में कांटा चुभता, सरकार की आंखों से आंसू निकलते, रोते हैं रसूलुल्लाह, मेरी उम्मत को तकलीफ हो रही है। आप जरा गौर करो, एक माँ की मोहब्बत कितनी होती है। जब तक बदन में रूह है, माँ अपनी औलाद से प्यार करती है। रूह निकलने के बाद माँ प्यार नहीं करती, बाप प्यार नहीं करता। 3 दिन की ज़ियारत के बाद हमें ले जाकर डालने के बाद ज़ियारत होगी, अब भूल जाएंगे, हमें कोई याद नहीं करेगा। याद करे तो भी बस याद करेंगे, मगर हमारे काम नहीं आ सकते। हमारी कब्र में आकर देख नहीं सकते कि रात में बच्चे को प्यास लगती थी, अम्मा उठाकर कहती थी बेटा गर्मी के दिन चल रहे हैं, पानी की प्यास लगी तो पी ले बेटे। अरे रात में घर में सोया था, माँ उठाकर पानी पिलाती थी, मगर कब्र की पहली रात जब गुजरती है, पानी कौन लाएगा तुझे, पानी कौन पिलाएगा। उस कब्र की तारीक वादी में जिसकी पहली रात जो कब्र में गुजरती है, पूछो उस मुर्दे से, उस बेकस और बेबस मुर्दे से ये आवाज आएगी, आज मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। मेरे माँ बाप लाइट और उजाले में तो बंद कमरे में पंखा और कूलर में सो चुके हैं, मगर यहाँ पर सांप और बिच्छुओं ने मेरा हाल बुरा कर दिया। ऐ नौजवानों, अगर कब्र में चैन से सोना चाहते हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ के आका पर दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल लो। दुनिया का कोई जमात वाला तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, तुम्हारे ईमान को नहीं लूट सकता है। उनसे कह देना हमें किसी और की जरूरत नहीं, दीन किसी की जमात से नहीं आया, अमीरों से दीन नहीं फैला है, दीन फैला तो गरीब नवाज से फैला है। दीन दिया है, अरे जिसने हमें दीन ला कर दिया, उससे बड़ा कोई दुनिया में आलिम नहीं हो सकता जो मेरे ख्वाजा ने किया है। अहले सुन्नत वल जमात भी वही करती हुई नजर आएगी। आज से इरादा करो, हम किसी की बातों में आकर खाना खाने की हवस की बुनियाद पर हम जाकर खाना खा लेंगे, हमें बयान सुनना नहीं है, हम तो खाना खाकर वापिस आएंगे। ये जहन मत बनाओ, जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जो अल्लाह रसूल का नहीं वो हमारा नहीं, जो रसूलुल्लाह का नहीं हो हमारा नहीं हो सकता है। आज अहले सुन्नत वल जमात के अंदर इतना पावर है, यकीन जानो, कोई आदमी अगर ज्यादा उछल रहा दौलत की बुनियाद पर, अपनी बॉडी और रट्टों की बुनियाद पर अगर उछल रहा है, उसको बेड पे डालने के लिए अमास के दिन सूरे कौसर 50 मरतबा, इन्ना आतैना कल कौसर, ये पूरा सूरा हुवल अबतर 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 7 मरतबा तकरार करके पढ़ के एक जगह की मिट्टी लाना, वो जगह नहीं बोलूंगा, बाद में तुम ला कर डालेंगे। एक जगह की मिट्टी लाना और वो मिट्टी पर ये सूरा पढ़कर दम करें, घर में डालो घर खत्म, दुकान में डालो दुकान खत्म। ये ताकत अल्लाह रखा है, बोलो सुभान अल्लाह। कोई उछला अपनी दौलत की बुनियाद पर अकड़ता है तो उसको बेड पे डालने का एक तरीका ये है, अगर आप उसके मकान तक नहीं जा सकते, मौलाना मकान गए तो उन्हें देख लेता आए वो तो क्या करना, वो हमारे पास है तरीका, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जब हमें कोई छेड़ता ना हम उसे नहीं छोड़ते। हमें सड़कों पे कालर तो पकड़ सकते, हम खामोश भी रहेंगे, मगर हम जब रात में मुसल्ले पे बैठे ना, नींबू कैसा सूखा उन्हें वैसा सूखा, कच्चा नींबू सूखे जैसा उन्हें सूख जाता। अल्लाह ने कलाम में वो ताकत रखी है। ये ताकत सिर्फ अहले सुन्नत को नहीं, ये सिर्फ ताकत अल्लाह ने सुन्नियों को दी है, और जो अहले सुन्नत वाला होता है वो किसी से नहीं करता है। इसलिए सरकार के दीवानों, मैं उम्मत की मदद की बात कर रहा हूँ, गुस्ताखे रसूल की मदद नहीं। ये भी बात याद रखो, उम्मत की मदद की बात कर रही, एक के खिलाफ बोल रही, एक की तायीद कर रही, ये क्या। अब यहाँ भी सुन लो, क्योंकि बात ये नहीं आना क्या उन्होंने उम्मत ही नहीं, क्या उम्मत में भी गुस्ताखे रसूल नहीं, आशिक़े रसूल की मदद। गुस्ताखे रसूल की मदद कोई नहीं कर सकता, अगर कोई करे बोले तो उन्हीं में से हो गया और उसका भी ईमान चला गया। गुस्ताखे
रसूल की मदद करने का सवाल ही नहीं पैदा होता जो नबी का नहीं है। फारूक आजम ने तो तलवार से गर्दन उड़ाकर बता दिया ये उम्मती तो है मगर गुस्ताखे रसूल है, हम इसकी मदद नहीं करते, जो नबी की तौहीन करता उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। आप जरा गौर तो करो, फारूक आजम का वाकया ये आपने सुना है ना, वाकया सुना है आप कई बार उलमा से, उम्मत की मदद करो। अहले सुन्नत वल जमात का ये तरीक़ेकार हैं, वो उम्मत की मदद करते हैं, गुस्ताखों की नहीं करते हैं। जो नबी की शान में तौहीन करता है वो उम्मती फितना मुनाफिक कहलाता है। अब बताइए, हर नाम का एक तर्जुमा होता है, मगर कुरान जब उठाकर देखो, जितने लिखने वाले मुफस्सिरीन ने कुरान को लिखा है, अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन को छोड़कर सब ने नबी का माना नबी ही कर दिया। मगर जब अहले सुन्नत का कोई आलिम नबी का माना लिखता है तो नबी का माना नबी नहीं लिखता, नबी का माना गैब की खबरें देने वाला लिखता है, गैब की बातें बताने वाला लिखता है। यानी नबी का माना ये है गैब की खबर देने वाला। ये अकीदा किसी और का नहीं है, अहले सुन्नत का है कि हमारे नबी को अल्लाह ने गैब का इल्म अता कर दिया। और अहले सुन्नत वल जमात ये पहले से है, क़यामत तक रहेगी। अब जितने भी आए ये बीच में बने, कौन तो भी हर चमकने वाली चीज को देख को भाग गया बोले तो उन्हें सीधा क्या समझ रहा, पेशानी पे गट्टे, दाढ़ी बड़ी, पैजामा छोटा, जुब्बा लंबा, मिसवाक, तस्बीह, बगल में मुसल्ला, खाने का डिपार्टमेंट पीठ पर रखकर चलने वाले को देखकर भाग रहा, रहम करते हो, फिर क़यामत में तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, क़यामत में बख्शा नहीं जाएगा। चिल्ले छट्टियों से दीन नहीं फैला, जो पेट भर के खाना खा के मस्जिद में सोए तो पेट भी हल रहा, आदमी भी हल रहा, इससे दीन नहीं फैला। दीन 40 साल तक मेरे ख्वाजा ने अपने नफ्स को मारा है, अल्लाह का जिक्र करते थे। हजरत साबिर बिया कलेरी ने 10 या 12 साल तक टहनी को पकड़कर अल्लाह का जिक्र किया, तब जाकर इनके जरिए दुनिया में दीन फैला है। और जब कोई मुर्दा लाता है वली ठोकर से उसे जिंदा कर देता है, इसलिए कि पेट बड़ा करके खाने का डिपार्टमेंट साथ रखने से दीन नहीं फैलता, बल्कि अपने नफ्स को खुदलने से और मुर्शिद के साये में मुरीद काम करे तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। सरकार के दीवानों, आप जरा गौर तो करो, समझने की जरूरत है। जब हमें मालूम हो गया हमारे नबी का दुश्मन है, हम नहीं जाएंगे, हमारे माँ बाप का कोई दुश्मन है, हम उसके पास नहीं जाते। अगर गए माँ बाप देख लिए तो माँ बाप नाराज होंगे, बेटा वो तो हमारा दुश्मन था, तू क्यों गया उसके साथ, हम तुझे मना करें, अगर तू ऐसा जाएगा हमारे घर में रहने के काबिल नहीं, तू निकल जा। अरे जो माँ बाप का दुश्मन है उससे मिले तो माँ बाप नाराज होते हैं, और जो रसूल का दुश्मन है उससे मिले तो क्या रसूल खुश हो जाएंगे? बोलो नबी खुश हो? इमाम हुसैन के दुश्मन से जब मिलेंगे तो क्या रसूलुल्लाह खुश होंगे? नहीं, कभी खुश नहीं होंगे सरकार। इसलिए कि जिसने हुसैन का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया, और जिसने मेरा दिल दुखाया उसने मेरे मौला को तकलीफ पहुंचा दी है। इसलिए दीवानों, आज अपने आप को बचा कर रखो। कोई कितना भी बड़ा आकर हमें दावत दे उससे बात मत करो, अच्छी बात है बोलो, मगर मत जाओ, अपने आप को बचा, ईमान को बचा लो। कुछ सीखना है, कुछ सीखना है। ये जो पोस्टर लगा ना 16 से 30 अप्रैल तक रेचूर में तरबियती ट्रेनिंग कैंप रखा गया, नौजवानों उठो और 16 अप्रैल को रेचूर में आकर प्रिंसेस फातिमा स्कूल में एंट्री ले लो। 15 दिन के अंदर जब तुम एज वापिस आएंगे ना, माँ बाप बेटे को देखकर खुश हो जाएंगे। बेटा तू अकड़ कर गया था, मगर अब तो तू अकड़ता नहीं, झुककर बात करता। ये चेंजेस कैसे आ गए? जब कहना सुन्नी दावत इस्लामी की बरकत से आ गया। वहां गया अकड़ता था, अब झुकना सीख गया, बोलता बहुत था मगर कम बोलने वाला बन गया। आज जरूरत है अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए, कमर बस्ता हो जाओ। और 16 अप्रैल को रेचूर की सरजमीन पर 15 दिन तक मुसलसल तरबियती कैंप रखा गया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े साहबा ने अपने आप को भी कुर्बान कर दिए, अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिए, मगर आज हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज के बाद जब रसूलुल्लाह के सामने आए, मेरे आका ने कहा बिलाल उठो, मदीने की गलियों में चले जाना, ऐलान कर दो
कि नौजवानों को रसूलुल्लाह ने तलब किया, कल सुबह जंग के लिए जाना है, मुजाहिदीन को तैयार करो, मैदान जंग के लिए मुजाहिदीन को जमा करो। हजरत बिलाल मदीने की गलियों में गुजर रहे हैं, ऐलान करते हुए जा रहे हैं, है कोई अल्लाह के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाला, है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश करने वालों, तुमको रसूलुल्लाह ने तलब किया है, अपना नाम नबी की बारगाह में आकर फेरिश्त में लिखा दो। रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, हजरत बिलाल ऐलान करते हुए जा रहे हैं। एक झोपड़ी आती है, उस झोपड़ी का दरवाजा भी सही नहीं है, उस झोपड़ी का छत भी सही नहीं है, मगर बिलाल जब झोपड़ी के करीब गए, उसके अंदर एक औरत अपने 6 साल नन्हे से बच्चे को लेकर सोई हुई थी। जब बिलाल की आवाज उस औरत के कानों से टकराई तो हजरत बिलाल की आवाज ने उस औरत के कानों में दाखिल होना था। औरत बेदार हो जाती है और आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बिलाल ऐलान कर रहे हैं, वो औरत गौर से सुनती है, क्या ऐलान हो रहा है? ऐलान ये हो रहा है कि रसूल ने मुजाहिदों को बुलाया है, सर कटा लेने वालों को बुलाया है, दीन के लिए नौजवानों की जरूरत है, दीन के लिए इस्लाम के लिए सर कटाने वालों की जरूरत है, रसूल ने बुलाया है। औरत सुनने के बाद जब रसूलुल्लाह के गुलाम की आवाज को सुना, हजरत बिलाल की आवाज ने उस औरत को इस कदर कमजोर कर दिया, वो रोने लगी, आंखों से ऐसे आंसू निकले कि वो आंसू निकलकर बच्चे के चेहरे पर गिर गए। इसके बाजू में 6 साल का नन्हा सा बच्चा सोया हुआ था। माँ की आंखों में आंसू देखकर बच्चा उठा, कहने लगा माँ क्यों रो रही है? बच्चा 6 साल का है, 12 साल का नहीं, 18 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 6 साल का नन्हा सा बच्चा कहने लगा अम्मी तू क्यों रो रही है? तेरी आंखों में आंसू कैसे आ गए? माँ कहीं तुझे अब्बू तो याद नहीं आए? इनके अब्बा मैदान बदर में शहीद हो गए थे, इनके शोहर मैदान जंग में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, मगर इनका एक अकलौता बेटा था। वो बेटा कहने लगा माँ तू क्यों रो रही है? तेरी आंखों में आंसू कैसे आ गए? क्या तुझे अब्बू की याद आ गई? माँ ने कहा बेटा अब्बू की याद नहीं आई, सरकार ने ऐलान किया गुलामों को हुजूर बुला रहे हैं, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ, मेरे पास कोई नौजवान बेटा नहीं जो नबी के खतबों में पेश कर सकूं, मेरे पास कोई नौजवान औलाद नहीं जो मुस्तफा पर वार कर उनके दीन के लिए कुर्बान कर दूं, इसलिए मैं रो रही हूँ। बेटे ने जब ये जुमला सुना, माँ का दामन पकड़ के कहने लगा माँ तू रोती क्यों है? तेरा बेटा मैं जिंदा हूँ ना, माँ मुझे ले चल सरकार के दरबार में, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना सर कटाने के लिए तैयार हूँ। ऐ नौजवानों, 6 साल का नन्हा सा बच्चा है जिसने जवानी की बहारें नहीं देखी, जिसने जवानी की उमंग नहीं देखी, मगर सर कटाने की बात करता है, अपनी जान देने की बात करता है। जब बेटा ये जुमला कहता है, माँ का दिल ठंडा होता है। सुबह अपने बेटे को लेकर फजर के बाद अल्लाह के हबीब की मस्जिद के पास वो खातून तशरीफ लाई, दूर खड़ी थी, सहाबा इकराम नाम लिखा रहे थे। जब आका की नजर उस औरत पर पड़ी, कहा कि बिलाल वहां एक औरत अपने बच्चे को साथ लेकर आई है, जरा जाकर दरियाफ्त तो करो क्यों आई है। हजरत बिलाल करीब गए, कहने लगे ऐ आने वाली खातून किस मकसद से आई है सुबह सुबह? कहा बिलाल क्या भूल गए हो, तुम ही तो थे जो रात में ऐलान कर रहे थे हुजूर ने सर कटाने वाले मुजाहिदों को बुलाया। हाँ हाँ ऐलान किया, मगर तुम क्या चाहती हो? कहा कि मेरा बेटा है ना, मैं इसका सर नबी के नाम पर कटाने के लिए लाई हूँ, नाम लिखाने के लिए लाई हूँ। बिलाल देखकर हैरान हो गए, अरे ये बच्चा तो छोटा है, ये जंग कैसे करेगा? 6 साल का नन्हा सा बच्चा है। अल्लाह अकबर। ये सुनकर बिलाल पीछे हटे, आका के दरबार में आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो खातून जो आई है ना आपकी मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लाई हैं। इतना सुनना था, मेरे आका खड़े हो जाते हैं, साहबा खड़े हो गए। उस खातून की तरफ रसूलुल्लाह बढ़े, कहने लगे ए बापर्दा औरत, ए बानकाब औरत, ए आने वाली खातून, तेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह तुझे इसका बदला जरूर अता करेगा, मगर ये बच्चा छोटा है, अभी जंग नहीं कर सकता, ये तलवार नहीं उठा सकता, ये तलवार की उतना लंबा भी नहीं है, मगर ये तलवार मैदान में नहीं चला सकता। तू अपने बेटे को लेकर चले जा, अल्लाह तुझे इसके बदले में तुझे सवाब अता करेगा। बेटा आका के चेहरे को देख रहा था, 6 साल नन्हा सा बच्चा नबी के चेहरे को देख रहा है। वो रसूल का चेहरा आज चांद जो आसमान में चमकता है ना, वो नबी के तलवों के सदके में चमक रहा है। जिस चांद को चांदनी मिली है तो मुस्तफा के तलवों के सदके में मिली, जिसको नबी का सदका
मिला, उसकी चमक का ये आलम है। आप सूरज जो चमक रहा है, चांद जो चमक रहा है, सितारे जो दमक रहे हैं, ये सब नबी के नूर के सदक़े में चमक रहे हैं। और जब नबी के नूर के सदक़े में जिनकी चमक का ये आलम हो, अब मदीने वाले आका के चेहरे का आलम क्या होगा? वो बच्चा नबी के चेहरे को देख रहा है, अब्बा अम्मी जान को रसूलुल्लाह समझा रहे हैं, वो बच्चा रसूलुल्लाह के कदमों में गिर गया, कहने लगा या रसूलुल्लाह, छोटा सा बच्चा है जिसने अभी जवानी की जिंदगी नहीं देखी, जवानी की दहलीज पर कदम नहीं रखा, रसूलुल्लाह के कदमों में गिरकर रोने लगा। मेरे आका मुझे मायूस मत कीजिए, मेरी माँ को मैं बड़ी उम्मीद के साथ लाया हूँ। या रसूलुल्लाह, मैं जानता हूँ मैदान जंग में मैं तलवार नहीं उठा सकता, मैं जानता हूँ मैं घोड़े पर सवार नहीं हो सकता। या रसूलुल्लाह, जो मैदान जंग में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, उस मैदान में मैं नारे तकबीर बुलंद करके सहाबा के जज्बे को तो बुलंद कर सकता हूँ। इजाजत दे दो ताकि मैं मैदान में नारे लगाकर गुलामों के जोश को तो बर्दाश्त कर सकूं। अल्लाह अकबर। ऐ औरतों, ऐ मर्दों, ऐ जवानों, तुम्हें क्या हो गया? पहले कौम, पहले सहाबा इकराम अपने जमाने में रसूल पर जान लुटाने के लिए तैयार थे, आज तुम्हें नमाज के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। इंटरनेट पे बैठकर घंटों से नंगी तस्वीरें देखने के लिए तो टाइम है, रात के 2-2 बजे तक ऑटो के अंदर, घर के छत पर, मकान पर, बंद कमरे में यूट्यूब और गूगल की दुनिया में खोकर नंगा नाच गाने देखने के लिए तो टाइम है, फजर की नमाज पढ़ने के लिए टाइम है? नमाज फजर अदा करने के लिए टाइम नहीं है। बुराई में दिल लग रहा है, अच्छाई में दिल नहीं लग रहा। आज पूरी कौम तबाह हो रही है, इसकी वजह यही है हमने नबी की सुन्नतों पर अमल करना छोड़ दिया, हमने रसूल के तरीके को छोड़ दिया। इसलिए मेरे रसूल ने कहा, अर्श के नीचे उसको जगह दे दी जाएगी जो मेरी सुन्नत पर अमल करता है। और सबसे बड़ी सुन्नत आका की ये है, वक्त पर नींद की कुर्बानी देकर सजदा करके नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करो। जिस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए सहाबा इकराम की औलाद कुर्बान हो गई, आज हमको उस दीन के लिए क्या कर रहे हो? माँ बाप के लिए तो मेहनत कर रहे, खेती बाड़ी में P1 की नौकरी मिली तो रात भर का गेट ताक लेते बैठे, नींद आ रही, झोंके जा रहे, पूछा गया रात में सोते क्यों नहीं? सो गया तो तनख्वाह नहीं मिलती मौलाना, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं रात की नींद की कुर्बानी इसलिए देता हूँ ताकि मेरी औलाद किसी के आगे हाथ ना फैलाए। रात की नींद उड़ाकर बाप रात भर मेहनत कर रहा है, औलाद कमा रही है, इंजीनियर और वकील की डिग्री लेकर पैसा कमाते हैं। पूछा गया क्यों? मैं अपने माँ बाप को खुश करने के लिए नोट कमा रहा हूँ, समाज में शान से जिंदगी गुजारने के लिए पैसा कमा रहा हूँ। मगर औलाद माँ बाप के लिए सब कुछ कर ली, और माँ बाप औलाद के लिए सब कुछ करे, बीवी बच्चों के लिए करे, अहले खानदान के लिए करे, मगर रसूल के लिए क्या करे? सरकार के लिए क्या करे? औलाद के लिए तो रातों को जाग कर 30 दिन के बाद तनख्वाह उठाए। नबी के लिए कभी एक रात जागा करो, तनख्वाह नहीं, जिंदगी भर आका मदीने से रोटी रोजी अता करेंगे। सुभान अल्लाह। जिंदगी भर आका अता करेंगे, वो रसूल देने वाले हैं। तुमने माँ बाप के लिए रातों की नमाजों को छोड़ा, दिन की नमाज कज़ा करके मेहनत करे, कारोबार करे, इतना दिल लगाए धंधे से, अजान हुई तो शटर डालने को तैयार नहीं, सजदा करने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। ये कौम कैसे कामयाब होगी? अगर कामयाबी चाहते हो, तुमने सबके लिए सब कुछ कर लिया, कभी रब के लिए और रसूल के लिए भी किया करो, रसूलुल्लाह के लिए किया करो। रसूल के लिए क्या करना है? आला हजरत फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। आज 16 अप्रैल की तैयारी करके ऐड से कितने नौजवान निकलते देखेंगे। नबी के लिए निकलो, रसूल के लिए निकलो, अल्लाह के लिए निकलो। इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे अंदर चेंजेस आ जाएंगे। आज इसके लिए कमर कसना होगा। ऐ गरीब नवाज की याद बनाने वालों, जिस दीन को पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज अपने घर बार को छोड़कर तशरीफ लाए, क्या उस नबी के लिए तुमको हमेशा रचूल में नहीं रहना
15 दिन के लिए अगर आप टाइम निकालेंगे ना, जिंदगी भर पड़ी है कमाने के लिए, 15 दिन अल्लाह और रसूल के लिए तो दे दो। देखो मेरे आका कैसा करम कर देंगे। जरूरत है आज दीन के काम करने की, जरूरत है आज इल्म हासिल करने की, आज जरूरत है आका की मोहब्बत में तड़पने की। तुम्हारा ये जज्बा इंशाअल्लाह कल भी हम देखेंगे। कल हमारा बयान गढ़वाल की सरजमीन पर है, आप तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह। मगरिब की नमाज में पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों मिलकर तशरीफ लाइए। दुनिया में आए हैं जहां दौलत के लिए, औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए सब कर रहे हैं, करो, मना नहीं करो, इन सब से ज्यादा रसूल के लिए करो। इसीलिए हुजूर ने कहा सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करना मोमिन की दलील है। ऐसा नहीं है माँ बाप से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो रसूल की आंखों का ठंडक का ख्याल तक नहीं आ रहा। नमाजें छोड़कर माँ से मोहब्बत, इबादत छोड़कर माँ बाप से मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाकर माँ बाप की खिदमत करो, आका हमारी खबर को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह। हमारी खबर को आका निगाह डालेंगे तो खबर जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। सुभान अल्लाह। जरूरत है दीवानों, अपने आप को बदल डालो, अपने अंदर चेंजेस लालो। मजीद तकरीर सुनना है कल इंशाअल्लाह गढ़वाल की सरजमीन पर मगरिब से प्रोग्राम होगा। कसीर तादाद में आप वहां तशरीफ लाएं। आपके पड़ोस में कितने किलोमीटर है यहाँ से? 30 किलोमीटर है। अरे लोग करनूल, रायचूर रिलीज पिक्चर डाले तो देखने आते हैं, चलो वहां जाकर देख करेंगे। गुनाह करने के लिए सफर करते हो, नेकी करने के लिए भी सफर करो। बोलो सुभान अल्लाह। नेकी के लिए सफर करो। अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं जो इल्म सीखने के लिए जब 30 किलोमीटर चलेंगे ना, पैदल नहीं, पैदल तो वो लोग जाते हैं जिनका अकीदा भी सही नहीं, मगर पैदल जाते हैं। अकीदा सही नहीं, पैदल जाते हैं। हम अकीदा सही रखकर गाड़ियों पर जाने को भी तैयार नहीं। हम दूर हैं इबादत से, मगर वो लोग पूरा करीब हैं अपने माबूदों की पूजा करते हुए। उनको अल्लाह उनके हिसाब से उनको नवाज रहा है, मगर हम लोग रब पर ईमान रखकर रब के बात पर अमल नहीं करते। अमल की जरूरत है। जब अमल करेंगे ना, अल्लाह हमारी रोजी में बरकत अता करेगा, कारोबार में बरकत अता करेगा। खुदारा नौजवानों, इशा की नमाज पढ़ें, नमाज के बाद तबर्रुक खाकर आप यहाँ से जाएंगे और कल इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज गढ़वाल की सरजमीन पर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरे करीम यहाँ जिन लोगों ने आज महफिल सजाई है, इनके सजाने को कबूल फरमा ले और आपस में एक और नेक होकर सब मिलकर हमको दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। दिलों से मौला हसद को निकाल, दिलों से मौला हसद को निकाल, दिलों से मौला हसद को निकाल। इखलास पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर, तेरे नबी की उम्मत की मदद करने का हमारे दिलों में जज्बा पैदा कर। जितने लोग दुआ के लिए हाथ उठाए, वो हाथ चेहरे पर मलने से पहले तेरे ख्वाजा के सदक़े में हमारी तकदीर को बदल दे। मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुनने सुनाने में कुछ ऊंच नीच या गलती हुई, आका की बेटी फातिमा के सदक़े में हमें माफ फरमा दे। तेरे महबूब की महफिलों की महफिल जहाँ सजती है सुन्नियों की, उस महफिल में हमें जाने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कल अच्छा दिन है।